So yesterday we started the conservation laws for the mechanics of a system of particles. So now we are at mechanics of a system of particles. Because from now onwards, you will study the mechanics of a system of particles, where the particle will be composed of more than one particle or more than one atom, but still how can we assume it as a single particle? So this is the basic theory. Actually, you know that every particle or every object is made of atoms, and every atom has its own weight, has its own mass. And therefore, here we will see that how that system of particle may be assumed to be concentrated on a single point, so that it can be considered as a mass, point mass. Okay. Yesterday I told you that if it is Earth, if it is Sun, and O is some point of observation or the point of reference, then individually the mass of the Earth will be concentrated on its center if it is a spherical body, like the spherical body as we assume, and similarly the mass of the Sun will be concentrated on its center of mass, which will be naturally in its center because it is also assumed to be of spherical shape. But if we assume both as one system, then I told you that if this is the center of Sun, this is the center of Earth, then just a minute. Then if we join the two, then there will be some point which may be either in the Sun or in the Earth, such that joining the 2 points, sorry, if we join the 2, then somewhere here there will be a point. मैं इसको बड़ा बनाती हूँ थोड़ा सा. ये कोई पॉइंट होगा and let it be R. Its position vector is R1, its position vector is R2. This is the line joining the 2. So on this line, there will be some point where the mass of the 2 will be concentrated. And I told you that we may show that ddt of mass of the Sun and the velocity of the Sun plus mass of the Earth and velocity of momentum, yes, velocity of the Earth. This will be 0. That is ms ds, mass into velocity. Mass into velocity is equal to constant. Now this is the momentum of Sun, this is the momentum of Earth, and this momentum is constant. From here we also define it to be, I think this was msr. No? Yes, this was constant. And I also defined that you can write it also ms, and then dvs dt may be written as drs dt plus me dr dt is equal to constant. So it is again
ddt of MSRS plus MERE is equal to constant. We may define this MSRS plus MERE to be equal to sum MR. Okay, where what is M? M is equal to MS plus ME. This is the sum of the two masses. And naturally, R is defined as sigma MI RI upon sigma M I, where I has only two values, S and E. So we can also define the center. This R is the center of mass. This is indicating the position of the center of mass of the two objects. In the same way, you can define the center of mass of a system of particles. Suppose there are so many particles constituting an object or constituting a system, and this is the point of observation. Then from this point of observation, this may be R1, this may be R2, this may be R3. These are the positions of different particles. In general, you can say that Ri is the position for all the I particles. Then naturally in this system, there will exist a point. If I join this point, then this is the point which will be treated as the point where the mass of whole of the system may be assumed to be concentrated. ठीक है, क्योंकि सारे आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्फेरिकल हो, सिमेट्रिकल हो, ये कोई जरूरी नहीं है. तो स्फेरिकल होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, उनमें तो जो सेंटर होगा ऑर्डर कर जाएगा. लेकिन जब आप कोई असिमेट्रिकल बॉडी लेते हैं तो दैट इज कंपोज्ड ऑफ सो मेनी पार्टिकल्स. वहां पर या फिर जब आप एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं, उस पूरे सिस्टम को आप सिमेट्रिकल बाउंड्रीज में नहीं बांध सकते. Still you can find a point which may be treated as if the mass of whole of the system is concentrated on that point. And how will we define that point? I have already defined it. Here you can say if I is equal to 1 to n, then R may be defined as sigma mi Ri upon sigma mi. In this case, I was having only two values because you were having only two particles, and here because you are having so many particles in a system, so this R is defined like this. So you can say that it is defined as the weighted average of the vectors of all components of a system. बिल्कुल ये एक वेटेड. किस किस को नहीं दिख रही बेटा? मैम दिख नहीं रही मुझे. मैम मुझे भी नहीं दिख रही है. यहाँ से तो शेयर हो रही है, ये बड़ी प्रॉब्लम है. दिख रही है मैम, दिख रही है मैम, दिख रही है, बट जो आप लिख रहे हैं वो बहुत देर में आता है. इंटरनेट में प्रॉब्लम है मैम. जो आप अभी लिख रही हो वो नहीं शो हो रहा. और आवाज पहले आ रही है. यस मैम. एक सेकेंड होल्ड करो. बेटा मेरा पैस वाला लगा हुआ है वाईफाई, इससे ज्यादा तो मैं नहीं कर सकती. देखो अभी मैं कोशिश तो करूंगी, जितने भी लेक्चर्स है ना तुम लोग की, ये सब मैं दूसरी तरह से भी बना के इसको डालने की कोशिश करूंगी. ठीक है, सो शुड आई स्टार्ट नाउ?
चलिए ठीक। अगर आर का डेफिनेशन देखो तो ये क्या है, ये वेटेड एवरेज है, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल वेक्टर्स, क्योंकि आर आई आ गया, आर आई गिविंग द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी वेक्टर, so it is the weighted average of vectors of all the components of that system. So in this way you can define this R. Now we will come to the conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum of a system of particles. हमारा वैसे काफी टाइम निकल गया इसी में ही, पर चलिए ओके। जब आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वेयर देयर आर सो मेनी पार्टिकल्स, सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी जो आपने पहला वाला किया था जिसमें सिस्टम नहीं था, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट था, वहां पर हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने जस्ट ये कहा था कि देयर आर सर्टेन फोर्सेस। यहाँ पर जब आप सिस्टम की बातें करेंगे तो हम ये कहेंगे कि वहां दो तरीके की फोर्सेस होंगी, एक एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी और एक इंटरनल फोर्सेस होंगी। इंटरनल कौन सी होती है? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है। जब किसी सिस्टम की हम बात करते हैं तो नेचुरली हर पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्सेस एक्सर्ट करता रहता है कॉन्टिन्यूसली, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती, बहुत बार ऑब्जर्वेबल होती है, बहुत बार ऑब्जर्वेबल नहीं होती। तो कंपोनेंट जो फोर्स का कंपोनेंट है, उस फोर्स में दो तरीके की फोर्सेस होती हैं, एक एक्सटर्नल फोर्सेस और एक इंटरनल फोर्सेस। उसको हम कैसे दिखाते हैं? Suppose we are considering ith particle of a system of particle. I am considering the ith particle. Then there are two forces. एक सेकेंड आप लोग होल्ड करना जरा। Yes, there are two forces. One is external and another is internal. For example, if I say about the forces on the ith particle, then I may write what is Fi. Fi will be constituted of two forces, one external. So I will write Fe on the ith particle, and then summation of all those forces which are exerted on ith particle by j particles. This I is not equal to j. j की वैल्यूज क्या होंगी? j is equal to 1 to n, but naturally I will not be equal to j. तो आपका जो पार्टिकल है वो n सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें जो फोर्स होंगी एक एक्सटर्नल, तो ith पार्टिकल, i का मतलब है जो सफिक्स में हमने i लगाया है, यानी कि ith पार्टिकल पर जो भी फोर्स होगी। और यहाँ पर मैंने लिखा है Fi, किसी किसी किताब में Fji भी लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसे इस तरह लिख रहे हैं। ये दिखा रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय jth पार्टिकल ऑन ith पार्टिकल। नाउ आई एम राइटिंग व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले मैं इसको एक पार्टिकल ith पार्टिकल के लिए ले लेती हूँ, pi डॉट। नाउ बाय डेफिनेशन rate of change of momentum is equal to forces exerted on ith particle. And what is it? This is Fi internal plus summation
ij where I is not equal to j. This is written for a single ith particle which is general. आप कोई सा भी ले सकते हो, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब हम इसे सारे पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे दी, एंड इफ वी सम इट, देन समेशन pi डॉट इज इक्वल टू समेशन fi प्लस समेशन fij, I is not equal to j. May anybody of you tell me that what is its value? Summation fij, first summation, this is for all I, this is for all I, this is for all I. Anybody of you, what will be its value? If I apply Newton's third law, what is its value? What the third law says? If a force is exerted by ith particle on the jth particle, then the same force in the opposite direction will be impressed by the jth particle on the ith particle. तो जहां जहां fi होगा वहां एक और फोर्स होगी fji. अगर fij है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फोर्स होगी? यदि fij है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कौन सी फोर्स मिलेगी? fj. जो ये तो पार्टिकल i पर लगा रहा था, ये ith पार्टिकल j पर लगाएगा, दोनों ही बराबर है, तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. दिस इज बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. बाय थर्ड लॉ. यहाँ पर एक चीज देखिएगा, मैं यूज करूंगी वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आप लोग अपने आप सर्च करिएगा क्या होता है वो. यहाँ से हमारे पास रह गया सिग्मा पी डॉट इज इक्वल टू सिग्मा fi एक्सटर्नल. ओके, सिग्मा fi एक्सटर्नल मैं इधर लिख रही हूँ सिग्मा. नाउ दिस इज pi डॉट इज व्हाट? This is rate of change of momentum. That simply means momentum and then its derivative. So it is summation mi vi dot or summation mi second derivative with respect to time होगा ये, second derivative of position. So it is second derivative sigma mi ri. Now what is the sigma mi ri? Second derivative of mr as I defined earlier. So it is m second derivative of r. This is a result connecting the force and change in the position of the center of mass. मैंने आपको बताया था कि यदि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके, तो उन बहुत सारे पार्टिकल्स में ये आपका O है और ये हमने एक सेंटर ऑफ मास लिया और ये R है. तो आप देखो यहां से ये एक रिलेशन आया. It is showing that as the force is applied, then there is a change in R. डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि there is a change. तो ये शो कर रहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स द सेंटर ऑफ मास is changing. That means it is behaving like the system of masses is changing its position in the form of or with the help of the change of position of center of mass. इसको हम बहुत आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब फोर्स इंप्लीमेंट होंगी
तो नेचुरली फोर्स इंप्लीमेंट होने पर उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उन पर कुछ ना कुछ असर आएगा, उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो हम हर एक की पोजीशन का चेंज ना दिखा करके हम उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकें कि जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, जो सेंटर है जहां पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना गया है, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो एक पॉइंट मास हो गया, ये एक ऐसा पॉइंट हो गया तो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबके मासेस को, सबका मासेस यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो ये एक रिलेशन है जो ये शो कर रहा है कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस द सेंटर ऑफ मास विल चेंज इट्स पोजीशन, रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द होल सिस्टम। ये इसका एक रिजल्ट हुआ। अब हमने कहा ये हमारा यहां से चल रहा था, ये यहां से चल रहा था, सिग्मा ऑफ पी आई डॉट, ये यहां से चल रहा था, ठीक है, यहाँ पे हमने ये लिखा था। तो ये तो हमने एक रिलेशन दिखाया जो क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि फोर्सेस का असर किस तरह से होगा किसी सिस्टम पर। तो हमने ये बता दिया कि फोर्सेस का असर ये होगा कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस इंप्लीमेंट होंगी, क्योंकि न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन यही तो कहता है कि जब एक्सटर्नल फोर्सेस इंप्लीमेंट होंगी तो जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है दैट विल बी चेंज्ड, otherwise the particle will move with the constant velocity, with the constant acceleration। यहाँ पर ये बता दिया कि अगर फोर्सेस इंप्रेस हो रही हैं तो चेंज होगा, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में उस चेंज को हम एक सेंटर, एक मास पॉइंट के चेंज की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब यहाँ से जो हमें कंजर्वेशन लॉ लेना है हमारा ये है सिग्मा ऑफ पी आई डॉट, सिग्मा ऑफ पी आई डॉट यानी समेशन पी आई डॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ऊपर था ये summation of external forces। So if the summation of external forces is equal to 0, I क्या है, I is representing all particles, not the ith particle, it is representing all। So in your system of particle the forces exerted on each and every particle are like the resultant is 0। So in this case summation of pi dot is equal to 0, it is 0 for all I, so it means it is also 0 for individual I, and therefore pi is equal to constant। यहाँ से आ गया आपका linear momentum is conserved। आप लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे आप एप्लीकेशन देख सकते हो। जब आप एक बोट में बैठते हो, पेडल बोट में, और आप पेडल को चलाते हो तो उस केस में ये कंजर्वेशन लॉ ही है कि जो बोट होती है वो पीछे की तरफ पानी को पुश करती है, और रिवर्स में क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होना है तो आपकी बोट आगे की तरफ चलती है। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट में भी जो फ्यूल जलता है, फ्यूल के जलने से जो फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस जो होती हैं वो गैसेस नीचे की तरफ एक फोर्स आता है, और वो फोर्स रिवर्स फोर्स जब देता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, मोमेंटम क्योंकि कंजर्व रहना है और दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी होती हैं, तो फ्यूल के जलने के बाद रॉकेट को एक फोर्स मिलती है और वो फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा, और उस ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। So this all is because of conservation law, linear momentum conservation law यहाँ पर लगा हुआ होता है। इसी तरह से एंगुलर के भी कई एग्जांपल्स होते हैं। Now we come to conservation of angular momentum of a system of particle। Conservation of angular momentum। For conservation of angular momentum, again I am plotting a system of particles, and here suppose the position, this is the ith particle,
and its vector is like this. This is the reference point. ये आपका ith particle है, ये center of mass है, तो ये R हो जाएगा. This is the center of mass. इन दोनों को हम join कर दें. इस center of mass से ये जो position है, suppose it is represented by SI. Then naturally there is a relation that RI is equal to R plus SI. इसको हम यूज करेंगे कहीं. तो if I am talking about the angular momentum, then by the definition, मैंने आपको पहले बता दी थी definition, वहां हमने L के रूप में define किया था. L was R cross P. Here it will be Li is equal to Ri cross Pi. This is the angular momentum for ith particle. Likewise, there will be angular momentum for other particles. What is the sum of angular momentum? It is summation Ri cross Pi, and summation is over I. Now write it as, अभी हम ये दिखाएंगे कि एंगुलर मोमेंटम को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं. मैथमेटिकली इसको और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. दिस इज Ri. Pi means mass into velocity, so Mi Vi, it is summation Ri cross Mi, and this Vi may be written as Ri dot. It is the derivative of Ri. Again, this Ri may be replaced by capital Ri plus Si. So this is Ri plus Si, then cross Mi, and this Ri dot will be Ri dot cross, plus Si dot. Okay, open it. Sigma Ri, ये जो Mi है इसको हम बाहर ले लेते हैं पहले, बाद में इसको एंटर कराएंगे अंदर. एज पर रिक्वायरमेंट सिग्मा Mi, Ri क्रॉस Ri डॉट प्लस Ri क्रॉस Si डॉट प्लस Si क्रॉस Ri डॉट प्लस Si क्रॉस Si डॉट. इसमें थोड़ा सा हमें देख के समेशंस को एंटर कराना है क्योंकि हमें एक रिजल्ट पे पहुंचना है. इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा Mi Ri क्रॉस Ri डॉट प्लस, नाउ here this sigma Mi, I'll enter it cross sigma Si dot plus sigma Mi Si dot plus sigma Mi Si cross Ri dot plus sigma Mi Si cross Si dot. Now, what is sigma MISI? इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, sigma Mi. This Si is Ri minus R. इसको खोलें आप, sigma MIRI minus sigma MIR. By definition, it is MR minus MR, so it is 0. Okay. Similarly, you can show that sigma MISI dot is also 0. ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया. तो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचे, उसी को हम लिखते हैं.
sigma li is equal to sigma mi r cross r dot plus sigma mi si cross si dot। r बाहर कर लीजिए, सिग्मा mi ri डॉट सिग्मा si क्रॉस इसको लिखिए आप एस आई क्रॉस सिग्मा एम आई एस आई डॉट। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस आएगा, आर क्रॉस ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? मास पॉइंट की वेलोसिटी, जहां पर जिस पॉइंट पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मैं इसको कैपिटल पी लिख रही हूँ। मोमेंटम हो गया ना ये, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन ये किसका मोमेंटम है? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एस आई क्रॉस ये क्या है, एम आई एस आई। एम आई एस आई अगर आपको ध्यान हो, हमने जो एस आई बनाया था वो क्या बनाया था कि ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था यहाँ से आर, और ये पॉइंट था सपोज आर आई, ये वाला पॉइंट था, ये वाली डिस्टेंस थी एस आई। तो एक तरीके से क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का, एस आई से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि पहले हम लीनियर की बात कर लें, एम आई एस आई लीनियर मोमेंटम है। ये किसका लीनियर मोमेंटम है? दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिलेटिव टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां से आ रही है। तो ये एम आई यानी मास, एस आई डॉट का मतलब क्या हो गया कि इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये जो है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज पी एस आर क्रॉस। जब हम आर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बन जाता है डेफिनेशन से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। और ये ith जो हमने ये पोजीशन ली थी, दिस वाज आर्बिट्रेरी, इट इज रिप्रेजेंटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एंगुलर momentum of the system relative to the center of mass. Okay, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है? यहां से आ गया टोटल एंगुलर मोमेंटम on a system of particles is equal to this one plus this one। ठीक है, अब इसमें हम अभी हमें कंजर्वेशन लॉ लाना है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ये तो हमने केवल एक इंटरप्रिटेशन दिया इसका कि यदि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो वो डिफाइन होके किस फॉर्म में आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई दैट टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम relative to this center of mass. So now we will prove the conservation law. L is equal to sigma li. L का मतलब total momentum. तो rate of change of momentum लाना है हमें. This will be sigma li dot derivative. It is summation. इसको हम li की definition खोल देंगे. This is summation ri
क्रॉस पी आई डॉट और आर आई डॉट क्रॉस पी आई प्लस आर आई क्रॉस पी आई डॉट। क्रॉस प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव लेना है, तो पहले एक वेरिएबल का उसके बाद दूसरे वेरिएबल का समेशन दिस आर आई डॉट, इसको ऐसे रखिए आर आई डॉट को क्रॉस, ये पी आई का मतलब हो गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मतलब एम आई आर आई डॉट प्लस आर आई क्रॉस पी आई डॉट। ये कितना होगा, दिस इज आर आई डॉट क्रॉस आर आई डॉट, तो 0 हो गया। ये बचा समेशन आर आई क्रॉस पी आई डॉट। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? This is rate of change of momentum. By definition, it is total force acting on a system. सिस्टम में अगर एक पार्टिकल है तो एक के ऊपर लागू हो गया, अगर ज्यादा पार्टिकल है तो उसके ऊपर लागू हो गया। तो बाय डेफिनेशन इट इज सिग्मा आर आई क्रॉस। अब टोटल फोर्स होगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था, इट इज एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा एफ आई जे, वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पर अभी हम इस एफ आई जे को टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि हमें एक स्टेज तक पहुंचना है इसमें। सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा आर आई क्रॉस सिग्मा एफ आई जे। अब देखिए, जो ये मैंने सिग्मा एफ आई जे लिखा है यहाँ पर, अब आप जो एल ले रहे हो वो है आपका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, क्योंकि आपने ऊपर लिखा था एल इज इक्वल टू सिग्मा एल आई, दिस इज टोटल मोमेंटम। तो इस केस में ये जो एफ आई जे है, यहाँ तो हम लिख रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय जेथ पार्टिकल ऑन आईथ पार्टिकल, बट जब आप समेशन ले रहे हैं, सारे पार्टिकल्स की बातें कर रहे हैं, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा, एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा आई क्रॉस। नाउ दिस विल बी सिग्मा एफ आई जे प्लस सिग्मा एफ जे आई। आई जे पर क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, जे आई पर क्या फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो दोनों ही यहाँ पर लिखे जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल है पॉइंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक मिनट, ये एफ आई है, एफ आई ई। देखिए, जब मैं इसे अंदर एंटर कराऊंगी आर आई को, तो देखिए क्या चेंज होता है, आर आई क्रॉस एफ आई जे, यहाँ पर डबल समेशन है जो हम लिख नहीं रहे, अंडरस्टूड है, प्लस सिग्मा आर जे एफ जे आई। देखा आपने मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर जे लगाया है क्रॉस, सॉरी ये क्यों लगाया, आर आई आईएथ पार्टिकल के पोजीशन को दिखा रहा है। जब हम एफ जे आई लिखते हैं तो इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय आईएथ पार्टिकल ऑन जेएथ पार्टिकल। तो हमें जेएथ पार्टिकल के पोजीशन को लेना पड़ेगा जैसे ही हम आर को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो जब मैंने आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराया एफ जे आई से, तो आर आई नहीं लिखा, आर आई की जगह क्या लिखा है, आर जे लिखा है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल प्लस सिग्मा आर आई क्रॉस एफ आई जे, इसे मैं लिख रही हूँ माइनस सिग्मा आर जे एफ आई जे। मैंने फिर से रूल लगा दिया,
Fij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Ji, तो इसे मैंने चेंज कर दिया, सिग्मा Ri क्रॉस Fi एक्सटर्नल प्लस, यहाँ कॉमन ले लीजिए Fij को, सिग्मा Ri माइनस Rj Fij, ठीक है। आप कहेंगे मैं अभी इसको 0 बनाने वाली हूँ, आप कहोगे हम पहले भी बना सकते थे, नहीं, वहां पर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाता। आर आई माइनस आर जे को मैं लिख सकती हूँ आर आई जे, ये इसी का नोटेशन होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, एंड देन एफ आई जे। आप देख रहे हो यहाँ आई आई सफिक्स 2 बार आ रहा है, जे जे सफिक्स 2 बार आ रहा है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब कोई सफिक्स 2 बार आता है तो उसको हम डमी सफिक्स कहते हैं, और वो सफिक्स समेशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर कायदे से 2 समेशन होने चाहिए, यहाँ पे 2 चलने चाहिए, ये समेशन जो मैंने 1 लिखा है इस जगह से ये 2 आ जाने चाहिए, नहीं, यहाँ से आएंगे नेक्स्ट वाले से। हाँ बेटा। मैम हाँ। लास्ट से थर्ड लाइन पे आर आई क्रॉस एफ आई जे नहीं आएगा मैम, क्रॉस नहीं आएगा यहाँ पे? हाँ बेटा आएगा, बिल्कुल आएगा, गुड। और फिर ये भी क्रॉस आएगा, ये भी क्रॉस आएगा, ये भी क्रॉस आएगा, छूट गया है, ये भी आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है, आर आई क्रॉस एफ आई जे, व्हाट इज आर आई जे क्रॉस एफ आई जे रिप्रेजेंटिंग? अच्छा ये बताओ कि अगर एफ एक फोर्स है, आर क्रॉस एफ ये क्या है? अभी पीछे हम इसे डिफाइन कर चुके हैं, दिस इज अ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि यस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग रोटेशन, और दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग रोटेशन एंड इट इज कॉल्ड टॉर्क, ये हमने यूज किया था। तो इस केस में ये क्या दे रहा है, ये इंटरनल टॉर्क दे रहा है, दिस इज इंटरनल टॉर्क, मैंने इसे शुरू में इसीलिए 0 नहीं रखा। इंटरनल टॉर्क का मतलब ऐसे हो गया कि एक ने ऐसे इफेक्ट पैदा किया और दूसरे ने ऐसे इफेक्ट पैदा किया, एंड अगेन बाय न्यूटन्स स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिस विल बिकम 0। यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग इंटरनल टॉर्क। तो जैसे हमने पहले कहा था ना कि जब लीनियर मोमेंटम में हमने कहा था कि एफ आई जे जहां भी है, यानी कि कोई एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, तो जो रिवर्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ है, रेसिप्रोसिटी लॉ, वो लागू हो जाता है, और जिस पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो पार्टिकल भी वापस उतनी ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा, एंड द सम ऑफ द टू फोर्सेस विल बी 0। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर हमने ये बताया कि जो टॉर्क है, एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल पर फोर्स एक्सर्ट करता है विच इज अ टॉर्क, तो दूसरा पार्टिकल भी उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करेगा, एंड दिस विल बी 0। तो हमारे पास केवल इतना रह गया, समेशन आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल, क्या चल रहा है, एल डॉट, दिस इज एल डॉट। अब हमने कंडीशन क्या लगाई, हमने कंडीशन ये लगाई कि लेट द टॉर्क बी 0। अब हम एक्सटर्नल पर आ गए, इंटरनल की बात नहीं कर रहे, इंटरनल तो न्यूटन के लॉ से पहले ही खत्म हो गया, ओके। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स की। हमने एक कंडीशन मानी कि लेट द टॉर्क बी 0, लेट द एक्सटर्नल टॉर्क बी 0, व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल है वो कैसा हो जाएगा, 0। लेट द एक्सटर्नल टॉर्क बी 0 फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल, तो एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के लिए 0 हो गया, एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 फॉर द सिस्टम। अगर ये हुआ तो व्हाट इज एल डॉट, एल डॉट 0 हो गया। एल डॉट 0 का मतलब व्हाट इज एल, एल इज कांस्टेंट, L is constant,
So this implies angular momentum is conserved. Is it okay? हमने दो कंजर्वेशन लॉ प्रूव कर दिए. फर्स्ट, द लीनियर momentum is conserved for a system of particle, and here angular momentum is conserved for a system of particle. Conserved for a system of particles. क्या कंडीशन रही, कोई बताओ आप में से कि कब ये कंजर्व हुआ? Anyone of you? एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो गया. Yes, when the external torque is 0. इसको लिखा ऐसे ही जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल वर्ड नहीं हम यूज करते हैं, हम सिंपली कहते हैं कि when the torque is 0. ठीक है. इसकी वजह एक और भी है. when the torque is 0 हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर न्यूटन के लॉ की बात करें तो वो लीनियर मोमेंटम की बात करता है, वो एंगुलर मोमेंटम के लिए बात नहीं करता. और हमने इसमें जो इंटरनल एंगुलर मोमेंटम है उसको 0 माना है, इंटरनल टॉर्क को भी 0 माना है. तो इसलिए हम कहते हैं when the torque is 0 the angular momentum is conserved for a system of particle. ठीक है. अब लास्ट हमारा आर्टिकल रह गया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल. ठीक. मैं आप लोगों को होमवर्क. हाँ बेटा. मैम अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड हो तो मैम हमें ये वाले डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि टॉर्क 0 होएगा. क्यों? बाय द वे रीजन. मैम इंटरनल के लिए बोल सकते हैं फिर उसमें हम एक्सटर्नल आइसोलेटेड सिस्टम में तो एक्सटर्नल से कोई मतलब ही नहीं रहा ना फिर. नहीं, ऐसा नहीं होता. एक्सटर्नल आइसोलेटेड सिस्टम का एक्सटर्नल से मतलब नहीं होता. आपकी सारी चीजें आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही हो रही हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में ये कंडीशन जो हम प्रूव कर रहे हैं, यही तो प्रूव कर रहे हैं कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है और फिर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है तो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व है. ऐसा कुछ नहीं कि आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई बाहर की फोर्स काम नहीं कर सकती. आइसोलेटेड सिस्टम की एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि जो उसका मास है वो कंजर्व है, उसका मास चेंज नहीं हो सकता. ठीक है. बाकी फोर्सेस तो आप एग्जर्ट कर ही सकते हो. ठीक है बेटा. अब इसमें जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपका होमवर्क है. आप अपने आप अब बनाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, और कल तक मेरे पास सबका आ जाना चाहिए. आप उसको बनाइए, फोटो खींचिए या जैसे भी, और फिर इसी प्लेटफॉर्म पर आप उसे अटैच करेंगे. फाइल को आप कर पाएंगे ना? इसी प्लेटफॉर्म पर अटैच करिए जिससे एक ही जगह रहे, और सारे लोग करेंगे आप में से. ठीक. अभी आप लोग स्टूडेंट नोट करके है मैम, उसमें टाइप करके सेंड करना या फिर एज ए रिप्लाई में? बेटा रिप्लाई में भी कर सकते हो, आपको जैसे सुविधा हो वैसे कर देना. अटैच फाइल का एक ऑप्शन है, आप अपनी फाइल बनाइए, मतलब आपने हाथ से लिखा, फोटो खींचा, एक फाइल बना लेना, उस फाइल को अपलोड कर देना. आप जैसे चाहे कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. आपका सिस्टम अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, आप टाइप्ड फॉर्म में भेजना चाहते हो, आप टाइप करके भेज दो. लेकिन हाथ का लिखा हुआ भेजो अभी, क्योंकि हाथ का लिखा हुआ भेजिए फोटो. आप हाथ से पहले एक नोट्स बनाइए उसका. ठीक है. और फिर मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ पे वो समझ नहीं आया है. तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अब आप करिए, काफी लंबा खिंच गया है ये, तो हम नेक्स्ट से आपका नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से. ठीक है. ओके मैम. अच्छा, अब आप बताइए.